Hello student, today we are going to discuss about a new chapter of class 10th in mathematics, arithmetic progression. Okay, we have seen lot of number arranged in a particular manner and they are called series. For example, you are writing, counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the series of numbers. 2, 4, 6, 8, 10. These are also a series of number. When we see all these series or a group of numbers, we find there is some variation. And since they contain some variation, we are categorize these series in a certain form, and that certain form is one of them arithmetic progression. Arithmetic means numerical value and progression means series. They must be either in increasing order or decreasing order, and thus we can define arithmetic progression as a series of numbers in which each number is called term, is obtained by adding a fixed number to the preceding number, except the first one, that is called first term. Okay, and the fixed number which is either added or subtracted to get the next term or the new number is called common difference. Okay, for example, if we write 1, 2, 3, 4, 5, it means when we add 1 into the 1, we get 2. When we add 2 into 1, we get 3. Similarly, we get 5 when we add 1 from 1 to the 4. It means 1 is a fixed number that can be added to get the next number. And these fixed numbers are known as common difference, and the first number of the series is called first term, second number of the series is called second term, and third number of the series is called third term. कंफर्म है? कोई भी नंबर अगर आप लिखते हो, ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल और देख लो, अगर हम पहला नंबर लेते हैं 70, ओके, उससे पहले लेते हैं 100, तो 100 में से हमने क्या कर दिया भाई, एक सर्टेन नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो 70 आ गया. अब 70 में से सर्टेन नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 40 आ गया. बट ए सर्टेन नंबर इज द फिक्स्ड नंबर. अगर वो चेंज होता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा. यानी अगर सेम फिक्स वैल्यूज को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई नया वैल्यूज बनाते हो, नया नंबर लिखते हो, तो वो आ जाएगा नेक्स्ट टर्म का वैल्यू. ठीक है. Arithmetic progression is confirmed if there is a difference of the previous to the next one is always remain constant, then we call it arithmetic progression. Then these numbers are said to be in arithmetic progression. Let us think about some life situation. Okay, let us think taxi fare of each kilometer is 15 and fare for next each kilometer is 8. It means the first fare is fixed, that is what, that is called RS15. Okay, and when we move to the next kilometer, we get again we have to give the 8 extra. What is the meaning of this one?
Meaning of this one is when we take the first number, that is called term 1. ओके, 1 किलोमीटर के लिए हमको क्या भाड़ा लगेगा भाई? सिंपली वी हैव टू पे ओनली 15 रुपीज. बट व्हाट विल हैपन व्हेन वी मूव टू द सेकेंड किलोमीटर? इट मीन्स वी हैव टू पे 15 प्लस 8. It means we have to pay 23 rupees for how many kilometer? 2 kilometer. Similarly, when we travel for 3 kilometer, we have to pay 15 plus 8 plus 8. It means that is 31 rupees for how many kilometer? 3 kilometer. It means we are getting a series of number 15, 23 and 31. Okay, and we go on adding the 8 to get the fare for the next kilometer. It means here is the first number or first term. We express the first term as A, and what the common difference? We get the common difference by subtracting the next value to the previous value. It means T2 minus T1 same as T3 minus T2 and so on. Okay, then if we subtract 23 minus 15, we get 8. If we subtract 31 minus 23, we also get 8. It means this is the fixed value that can be added to get the next value, and such type of series is known as a series of numbers, and we call this series as arithmetic progression. Okay, and what will happen? Type of arithmetic progression. The types of arithmetic progression. Arithmetic progression. Okay, there are two types. First one, finite, and second one is infinite. Second one is, first is finite and second one is infinite. Then what the finite arithmetic progression? Finite AB and infinite AB. Finite AB means having fixed numbers of term. अब इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म फिक्स होते हैं तो उसको फाइनाइट बोलेंगे. जैसे अगर आपने सिर्फ लिखा 2, 4, 6 और 8, तो इसमें क्या हो गया भाई? ओनली 4 टर्म्स. बट अगर आप ऐसा लिख देते हो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स we are getting infinite number of terms when we move on this series with a fixed, adding the fixed value. Confirm? That's good one. We can find out in our daily life either the finite AP or infinite AP. Then how can we check the series is finite or infinite? If the common difference are same, it is finite. If common difference are not same, infinite. Take it. Okay, let us move to the next to find out some formulas to derive the number of terms. Finding value of nth term. It means if we are having fixed number of terms, how can we find out what is the value of the fixed number of terms? Okay, now let the first term be a fixed number that is called A, and common difference
इज डी। हमने एक फिक्स नंबर ले लिया a और कॉमन डिफरेंस ले लिया d। कंफर्म। अभी अपने को एक बात बताना है, देन व्हाट इज AP? AP की अगर बात करें तो हमारा पहला टर्म जो होगा वो होगा a, एंड नाउ द सेकेंड टर्म इज t1 प्लस d। सेकेंड टर्म इज व्हाट इज t1 plus d, it means a plus d. Again think about the t3, we get what? t2 plus d, it means a plus d and plus d, that is equal to a plus 2d. Okay, similarly when we find out the t4, again we get t3 plus d, it means a plus 2d and plus d, that is equal to a plus 3d. This is the fixed number. Okay, now let us observe these situations carefully. Here is 2 and then here is 1d, here is 3, here is 2d, here is fourth term, this is 3d. अभी कुछ ऑब्जर्व हो रहा भाई, अभी अगर हम लोग सेकेंड टर्म निकालते हैं तो d उससे एक कम है, अगर थर्ड टर्म निकालते हैं तो उससे एक कम है, और अगर फोर्थ टर्म निकालते हैं तो उससे एक कम है ना। तो अब आप इसको क्या कह सकते हो भाई? भाई इसको आप लिख सकते हो किसके टर्म में? ऐसे अगर हम लोग चलते जाए ढेर सारे नंबर्स ऑफ टर्म्स हमारे पास आएगा। अगर मैं बोलूं भाई अब tn निकालो, क्या निकालो? tn, दिस इज कॉल्ड nth टर्म। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? अब आप बोलोगे सर पहला लिख दो आप फर्स्ट टर्म, पहले क्या लिख दो? फर्स्ट टर्म लिख दो, ठीक है, तो लिख दिया फर्स्ट टर्म। ओके, फिर आप बोलोगे जितने भी अगर यहाँ n है तो उससे एक कम करना है, तो मैंने एक कम कर दिया और कॉमन डिफरेंस लिख दो, एंड दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ओके, व्हाट वी गेट द nth टर्म? आइदर an लिखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी को कैसे लिख सकते हो? tn भी लिख सकते हो, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वी आर हैविंग formulas. Finally we get the formula for finding the nth term. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई कोई सीरीज AP में है या नहीं, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है कि अगर वो AP है तो हमको कौन सा टर्म पता करना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई भी टर्म पता करने की बात हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा भाई एग्जाम में कि कोई फर्स्ट टर्म है या नहीं है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। लेट अस सी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वन। ओके, क्वेश्चन इज हियर, आपके पास a बराबर दिया गया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8. Then find the value of an. What we have the formula of an? We have the formula of an as a plus n minus 1 into d. Only substituting the value we will get the answer. The value of a is 7 plus the value of n is 8 minus 1 into d is 3. Then what we get the value? We get the value as 7 plus 8 minus 1 is equal to 7, 7 3s are 21. Then correct answer is 28. Okay, again we can see some questions like second question. Okay, second question is the value of a is minus 18.9. okay, and the value of d is 2.5 and value of an is 3.6. then what we have to find out? we have to find out, यहाँ पे तो निकालना था an, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है भाई? अभी हमें निकालना है n की वैल्यू। तो भाई कोई भी वैल्यू निकालना, फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ एक और सिर्फ एक है, वो क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। फटाफट रख दो वैल्यू, an की जगह पे रख दो 3.6
ए की जगह पे रख दो -18.9 प्लस एन के जगह पे तो पता नहीं है इसलिए एन रखो नहीं, n-1 इंटू डी का वैल्यू 2.5। ओके, नाउ अब ये जो वैल्यू आपके पास है 18.9 इधर जाके क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। ओके, लेट अस मूव एंड सॉल्व द क्वेश्चन इन डिटेल। अब देखो कितना हो जाएगा ये 9 और 6 15, 9 3 12 एंड 2 22.5। अब ये आ जाएगा 2.5 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो इधर बच जाएगा n-1। अब आप बोलोगे सर 25 से ये कटेगा क्या, तो कटेगा 9 टाइम्स में। अब 9 इज इक्वल टू n-1, then we get 9 plus 1 as a value of n, and then finally the value of n is equal to 10. It means in this series the 10th value is 3.6. Clear? Okay, let us see some more questions. Okay, now the next question is question number 3. We are having a series -4. This is the blank space. Again there is a blank space. Again there is a blank space. Again there is a blank space and 6. Find the value of this one. This is called T2. This is 3, T4. This is T5. This is called T1 and this is called T6. ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है जो ब्लैंक स्पेस में। अभी आपको पता चल गया भाई अपने को क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला दिया हुआ है T1 कितना -4। अब आप बोलोगे सर पता चल गया T1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई -4। ये पता चल गया सब लोग को। ओके, नाउ विच टर्म इज गिवन, T6 इज गिवन। नाउ द वैल्यू ऑफ T6 इज व्हाट 6। Then we get the value of T6 is what, एक कम करके लिखना है ना, तो a plus 5d is equal to 6. Now put the value of a -4। अब इसको हमने वैल्यू पुट कर दिया किसकी भाई, a की वैल्यू कर दी -4। अब a की वैल्यू जब आप पुट करने जाओगे है ना -4, ओके, एंड 5d इज इक्वल टू 6। अभी आपको पता चलेगा नाउ द वैल्यू ऑफ 5d इज इक्वल टू 6 + 4, देन d इज इक्वल टू 10/2, 10/5 इज इक्वल टू 2। ओके, अब आपको क्या आ गया, अब आपको पता चल गया सर d की वैल्यू जो आ गई वो 2 आ गई है, कंफर्म। और पहले से आपके पास a की वैल्यू कितनी है 4, तो आपके पास a आ चुकी है 4 और d भी निकल गया। भाई आपको सिर्फ a और d चाहिए, उसके अलावा जो पूछेगा निकाल सकते हैं। अब आपको पूछेगा T2, तो अब आप बोलोगे सर T2 तो आसानी से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा a + d, तो फटाफट ऐड कर दो 4 + 2 यानी कि 6। अब T3 पूछ रहा है तो आप T2 में ऐड कर दो 6, सॉरी T2 में ऐड कर दो क्या d, तो T2 आपका आ गया था 6। अब ये सीरीज फटाफट बना सकते हैं आप क्योंकि उसमें d में 2 ऐड करना है, ठीक है। अब ये 6 है तो +2 ऐड कर दो तो ये हो गया 8। अगर आपको पूछ रहा है T4 तो आप ऐसे भी कर सकते हो a + 3d। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि इसमें क्या करना है, a की वैल्यू हो गई कितनी, a की वैल्यू हो गई 4, ओके, a की वैल्यू हो गई 4, 3 × 2 यानी 3 × 2 = 6 और 4 10, है ना। आप T5 भी पूछना है तो अब आपको कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू होगी 12। समझ में आ रहा है? चलो लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस सी सम क्वेश्चंस। Here is the box, here is 13, again here is the box and here is 3। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं होना। अब ये क्या है बताओ, ये है T1, ये क्या है T2 और ये क्या है T3, कंफर्म, और ये हो गया T4। नाउ वी आर हैविंग व्हाट, अभी अपने को 2 वैल्यू दिया हुआ, अपने को दिया हुआ है
अपने को दिया हुआ है T2 और अपने को दिया हुआ है T4। ओके, तो T2 की वैल्यू कितनी होती है? A प्लस डी हो गया 13, और T4 की बात करें, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड T4 की बात करें तो ये हो गया A प्लस 3D। अब A प्लस 3D की वैल्यू होगी कितनी? 3। कंफर्म। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को जैसे सॉल्व करना है कर सकते हो सॉल्व, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन। अब इसको माइनस कर दो, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते, किधर टेंशन लेने करने। ए कैंसिल हो गया ए के साथ, तो बच गया कितना? d माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 2d। अब माइनस 2d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। भाई कंफर्म हो गया, d की वैल्यू हो गई -5। d की वैल्यू कितनी आ गई? -5। अब आपको क्या निकालना है? T2 और निकालना है, नहीं, आपको निकालना है T1 और आपको निकालना है T3। अब T1 इज इक्वल टू होता है A, तो भाई पहले निकाल लो A निकालना पड़ेगा ना। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे A प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 13, तो A का वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस डी, तो 13 का 13 और D की वैल्यू आ गई -5। अब आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 13 और 5 इज 18, देन वैल्यू ऑफ A इज 18। नाउ व्हाट इज द T3? A प्लस 2D। अब आप बोलोगे सर ये तो आसान लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि A की वैल्यू आ गई 18, 2 का 2 और D का वैल्यू हो गया -5। ठीक है, अब ये हो गया 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बहुत आसान लग रहा है ना बनाने में? वेरी गुड। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ गिवन AP इज 78। आपके पास एक सीरीज दे रहा हूं मैं, देखना है कि उसमें कौन सा टर्म जो आएगा वो 78 आएगा। आपके पास है AP जो दिया गया है वो AP आपके पास है 3 8 13, 3 8 13 18 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट हो गया ये। ठीक है, फटाफट बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास A है 3, हमारे पास D है क्या? 8 माइनस 3 की बात करें तो आ गया 5। ओके, अब अपने को क्या दिया हुआ है? ये हो गया आपका क्या चीज़? Tn, यानी आपको Tn की वैल्यू भी दी गई है कितना? 78। अब आप बोलोगे सर इधर से ही सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू 78, तो A की वैल्यू पुट कर दो 3, n अपने को पता नहीं है तो n माइनस 1, और D की वैल्यू पुट कर दो कितनी? D की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 इज इक्वल टू 78। अब आप बोलोगे पहले 3 को उधर लेके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सर, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 5 इधर इक्वल टू 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 75, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 15। Now the value of n is what? 15 plus 1, that is the 16. Okay, then the answer will be the value of n is 16. It means 16th term है ना, 16th term of given AP is what? 78. कंफर्म पता चल गया? अच्छा लग रहा है? क्वेश्चन बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखना है आपको। हाउ मेनी 3 digits numbers are डिविजिबल बाई 7? कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है ना? चलो सॉल्व करके बताते हैं। सॉल्यूशन देखो, अब आपको देखना है 3 डिजिट के नंबर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला नंबर होता है 3 डिजिट का 100। अब भाई 7 से कटने वाला सबसे पहला नंबर बताओ, 100 तो कटेगा नहीं,
कितना होगा, समझ में आ रहा है? 7 से डिवाइड कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा भाई 98। कितना बच गया 2। अब इसको कटने के लिए इसमें कितना चाहिए भाई, इसमें अगर आप +5 कर दोगे तो 7 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमारा पहला जो टर्म हो गया वो हो गया, पहला नंबर हो गया 105 जो 7 से कट होता है। और वो कितना का डिफरेंस रहेगा उसमें, क्योंकि 7 से कटता है तो 7 का ही डिफरेंस रहेगा। अब फाइनली हमारे पास है सेकंड नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर हो जाता है 3 डिजिट का, वो 999। अभी ये भी देखना है कि भाई ये 7 से कटता है कि नहीं। 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, ओके, नाउ 1, नाउ 9, ओके, कितना हो जाएगा ये 7 2 जा 14। अब पता चल गया सर ये तो 5 अगर रहेगा, 5 अगर इसमें से नहीं हटाओगे तो 7 से नहीं कटेगा। Now we get the first term and the last term. We are having the formula Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Put the value, substitute the value 994 is equal to 105 plus n minus 1 into what is 7. Now 994 minus 105 इधर जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आ जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा भाई, इधर आके +1 हो जाएगा और हमारी वैल्यू निकल जाएगी n की। ठीक है, चलो देखते सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है भाई। 994 में से माइनस करो 105 तो कितना होगा, 14 में से 5 गया तो 9, 8 का 8 और 8 का 8, इसको कर दो 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 59, यानी कि 127 plus 1 is equal to 128 is the value of what, nth term. It means there are 128 3-digit numbers which are divisible by 7. Okay, thank you for watching the video.